Good morning, student of class 4. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, student, welcome back to your EVS class. Today, date is 21 December 2020 and I am teaching you chapter number 21 and name of the chapter is A Story of Fire. So student, let's do little recapitulation what we had done in our previous video. So student, in the previous video I explained you discovery of fire and uses of fire. So in the previous video I explained you student discovery of fire, how the discovery of fire changed the life of the early man, or in the other words you can also say that the discovery of fire helped man in many ways. So fire kept him warm in cold weather. Early man, so at the time of cold, or you can say winter season, so the fire kept him warm by burning the wood of the trees in this manner. आप लोग देखते हो ना बेटा, when the weather is very cold, so at that time we burn the fire, we burn the wood and take the heat of that. जब हम लोग wood burn करते हैं या so the heat, due to that heat we can kept our body warm. And with the discovery of fire, the early man, now they start cooking the food before eating. Even they are using this fire to light up his caves, because early human beings, they are living in the cave, गुफाओं में पहले रहते थे. So for lightening the caves they use the fire. And man started using coal, natural gas, kerosene oil. So burning of these things produce energy. So the discovery of fire changed the life of the early man.
After that, student, we discuss the uses of fire. So today, beside cooking, man uses fire for many others things also, like melting of the iron. Iron is the metal. We, in the old time, the houses which we make, maximum houses are of mud, made of mud, wood, straw, and that houses are known as kacha houses. But now, in present time, we are making the houses that are known as pakka houses, because we are using the bricks, ईंटों को यूज कर रहे हैं for building pakka houses. And how we made this bricks? By baking the mud. बड़ी बड़ी भट्टियां होती हैं बेटा, जहां पे ईंटा पकाई जाती है, ईंटे को बनाते हैं, होती है मड ही है। उसके बाद इसको बेक करते हैं एक टेम्परेचर पे, और तब ये बिल्कुल हार्ड बन जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिक्स बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्रिक्स। So now the pakka houses are made with the help of the brick, or many things we done with the help of the fire. Man has started running machines and engines by energy produced from fire. Now see student, this fire has become the greatest achievement for mankind. So picture is also given on page number 120. This is a picture of your LPG gas cylinder. This is used in the kitchen by your mother for cooking the food. In the old time, coal is also used for cooking the food, or for running the steam engine. Kerosene is also used. So these are the things which are shown in the picture also. Now student, as we know that the discovery of fire has changed the life of a human beings, but at the same time we know that this fire is also very dangerous, because all the things are burned in the fire and then they change into the form of the ashes. ठीक है, आग में लगभग सारी चीजें बर्न हो जाती हैं और वो एश फॉर्म में चेंज हो जाती हैं. सो स्टूडेंट, वी नो दैट द लाइफ ऑफ द अर्ली ह्यूमन बीइंग्स चेंज with the discovery of fire, but at the same time this fire is also very dangerous. That is the reason in the old time early human beings knew that this fire has changed their life, but it is also very dangerous. So they start worship, they start worship the fire also. ओल्ड टाइम में लोगों ने आग की क्या पूजा करना भी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये बहुत डेंजरस भी है. इज इट क्लियर? सो टुडे वी विल डिस्कस व्हाट आर द प्रिकॉशंस वी शुड टेक टू सेव आवरसेल्फ फ्रॉम द फायर. हम क्या प्रिकॉशंस लेंगे जिससे कि हम अपने को, बिकॉज वी नो दैट द फायर इज वेरी डेंजरस. सो व्हाट प्रिकॉशंस वी कैन टेक
to save our life from the fire. Handle with care. So heading is given, handle with care. Why? Because we know that this is also very dangerous. If we don't take precautions, then it is very dangerous for our life also. So let's discuss all the points one by one. Fire can be dangerous too if we do not use it carefully. It can cause serious accidents, loss of property and life also. Fire can be dangerous. Fire can be dangerous too. Okay. If we do not use it carefully, okay, it can cause serious accident and loss of property and life. सी स्टूडेंट, फायर कैन बी डेंजरस टू, ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, फायर बहुत डेंजरस भी है इफ वी डू नॉट यूज इट केयरफुली. ओके, देन व्हाट हैपन, इट कॉजेस सीरियस एक्सीडेंट एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ आल्सो. आपने कई बार न्यूज चैनल्स या न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि किसी ऑफिस में आग लग गई ड्यू टू शॉर्ट सर्किट. ठीक है, सो अगर हम लोग प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं बेटा तो ये बहुत डेंजरस भी है. शॉर्ट सर्किट से स्पार्किंग होती है, बाई चांस इससे जब आग लग जाती है तो आग, इट इज वेरी डेंजरस. एक तो लाइफ तो जाती ही जाती है, प्रॉपर्टी जितनी भी चीजें होंगी, आग लग गई, कोई बिल्डिंग में आग लग जाती है या किसी घर में आग लग जाती है तो यू नो दैट ऑल द थिंग्स बर्न इन द लाइफ. तो all the things burn in fire. So loss of property तो होगी and life also. ठीक है, किसी आप लोग ने कई सीन देखे होंगे, बिल्डिंग में आग लग गई या कहीं काम वर्किंग प्लेस पे आग लग जाती है. सो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट. प्रॉपर्टी का तो लॉस होता ही होता है, इसके संग संग कई लोगों की जान भी चली जाती है. ठीक है, चारों तरफ आग लग गई है, आप कहां से बच के भागोगे. ठीक है, सो दैट इज द रीजन ये बहुत डेंजरस भी है. अब जैसे आपके इस समय देखो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को बहुत कंफर्टेबल बना दिया है. इसके साथ साथ अगर बेटा फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आप सोचो तो हम अपने घर में सारी डेंजरस चीजों के संग लाइफ जी रहे हैं. सारी डेंजरस चीजें जिससे अगर हम प्रिकॉशन ना लें तो हम मर भी सकते हैं. ऑल द सच टाइप्स ऑफ थिंग्स आर प्रेजेंट इन आवर हाउस. ऐसा पास्ट टाइम में नहीं था. यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग. देखो, ड्यू टू एडवांसमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी देयर आर लॉट ऑफ इन्वेंशंस एंड दीज इन्वेंशंस मेक आवर
life very comfortable, but at the same time it is true to say that we are living around all the dangerous things. पास्ट टाइम में क्या होता था? पास्ट टाइम में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती थी इन मैनी विलेजेस. वुमन कुक द फूड और दे आर यूजिंग वुड और कोल और kerosene oil for that. So in old time, but if you are talking about the present time की बात करो तो हर घर में मैक्सिमम फैसिलिटीज हैं. एंड अगर आप उन्हें हैंडल नहीं करते हो केयरफुली तो प्रॉपर्टी का लॉस तो होगा, उसके संग लाइफ का भी लॉस हो सकता है. ठीक है, जैसे आज प्रेजेंट टाइम में, इन पास्ट में क्या होता था? एट द टाइम ऑफ कुकिंग देयर इज लॉट ऑफ स्मोक, क्योंकि लकड़ी और कोयले को जलाने में बहुत धुआं हुआ करता था. ठीक है, बहुत ज्यादा धुआं होता था जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता था. अगर हम प्रेजेंट टाइम का कंसीडर करें, आज एलपीजी गैस सिलेंडर पे कुकिंग हो रही है. ठीक है, सो देयर इज नो पॉल्यूशन, बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं है इससे, बट इट इज वेरी डेंजरस. बाई चांस इफ देयर इज ए लीकेज ऑफ द गैस, क्योंकि आपने देखा होगा या मम्मी यूज अ लाइटर इन द किचन, अब very small spark comes out from the lighter and it start burning by chance. और ये जो आपकी एलपीजी गैस है ना बेटा, इसमें स्मेल नहीं होती है, इसमें स्मेल डाली गई है कि फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज एनी लीकेज ऑफ गैस, सो बाई स्मेलिंग यू कैन अंडरस्टैंड देयर इज लीकेज ऑफ ए गैस. रियल में अगर देखा जाओ तो इस गैस में जो आपकी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, इसमें कोई स्मेल नहीं है, स्मेल इसमें डाली गई है जिससे कभी भी ये लीक करे तो उसका पता चल जाए. देखो कुकिंग आज कितनी अच्छी हो गई है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, सब इको फ्रेंडली है. बट कुकिंग फूड ऑन एलपीजी गैस इज वेरी डेंजरस if you are not taking the precautions or if you are not using these modern things carefully. बाय चांस गैस लीक कर रही है, आप लाइटर को टच भी मत करो, बट बाय चांस बाय मिस्टेक अपने स्विच ऑन या ऑफ कर दिया, क्योंकि कई बार होता है व्हेन वी स्विच ऑन और ऑफ some spark come out from the plugs, बस वो लाइट से स्पार्क निकलेगी और all the gas is in your house, it start burning, it catch fire. that is the reason student, साइंस और टेक्नोलॉजी ने लाइफ तो कंफर्टेबल बना दी, लेकिन लॉट ऑफ प्रिकॉशंस हमें लेने हैं. बिकॉज इन प्रेजेंट टाइम वी आर स्लीपिंग इन द हाउस विच इज फुल ऑफ डेंजरस. आपके बहुत से घर में चीजें क्या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं. सो बाई मिस्टेक अगर गलती से इलेक्ट्रिसिटी की वायर कहीं पे कट है, इफ यू टच इट देन इलेक्ट्रिक शॉक भी आपको लग सकता है. ठीक है, तो जितनी भी चीजें हैं, फैन है, फैन चल रहा है बहुत तेजी से, आपने हैंड उसमें रख दिया, हो सकता है आपकी फिंगर कट जाए. सो मैं दैट व्हाट इज द थिंग आई वांट टू एक्सप्लेन दैट कि आज हमारे हाउसेस में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, लॉट ऑफ फैसिलिटीज हैं, बट एट द सेम टाइम द थिंग्स विच आर इनसाइड आवर हाउस दे आर वेरी डेंजरस. सो हमें इनके अवेयर रहना है कि ये चीज़ों से क्या नुकसान होने हो सकते हैं, और हमेशा इन चीज़ों को हमें केयरफुली यूज करना है. वी शुड हैंडल ऑल दिस थिंग्स वेरी वेरी केयरफुली, अदरवाइज इवन वी कैन लॉस आवर लाइफ ऑल्सो. देखो वी शुड नॉट, जैसे फर्स्ट है फर्स्ट पॉइंट है
we should not, we should not play with the fire. We should not play with the fire. Playing with match sticks or crackers can be dangerous. So, see student, we should not play with fire. देखो स्मॉल बच्चे होते हैं घर में, छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनके हाथ में मैच स्टिक, माचिस की आपने देखी होगी, मैच स्टिक्स होती है जिससे हम लोग फायर प्रोड्यूस करते हैं. ओके, मैनी टाइम स्टूडेंट प्ले विद दैट. सो स्टूडेंट नेवर प्ले विद द फायर. आपको नहीं पता, बाई चांस कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है. आपने न्यूज़पेपर में, आई डोंट नो आप लोग इतना न्यूज़ चैनल देखते हो कि नहीं देखते हो, आप लोग न्यूज़ चैनल में देखा करो या तो लोकल न्यूज़पेपर्स पढ़ा करो. एट द टाइम ऑफ कटिंग ऑफ क्रॉप्स, इतनी मेहनत से कल्टीवेशन करते हैं फार्मर्स, और आफ्टर दैट दे कट द क्रॉप एंड दे लेफ्ट द क्रॉप इन द लैंड. और क्रॉप कब कट की जाती है? व्हेन इट चेंज इनटू अ ब्राउन कलर. जब एकदम से जो क्रॉप होती है वो जब पक जाती है, जब वो ग्रीन होती है तब हम उसे कट नहीं करते हैं. जब वो पक जाती है, ब्राउन कलर में चेंज होने लगती है, सो एट दैट टाइम वी कट द क्रॉप. एंड आफ्टर कटिंग, बाय चांस आप छोटे बच्चे हैं, आप लोग पेपर में, न्यूज़पेपर में देखते होंगे पूरे गांव की फसल जल गई. होता क्या है, वो क्रॉप जो होती है बिल्कुल सूखी होती है. वो आपके बड़े बड़े पेड़ नहीं है, बड़े बड़े पेड़ की लकड़ियों को जलने में, उनमें आग लगाने में बहुत टाइम लगता है. ठीक है, अगर आप एक पेपर ले लो और उसमें फायर करो, तुरंत पेपर जल जाता है. ठीक है, इन द सेम मैनर अगर आप क्रॉप वाले फील्ड में, इफ यू आर प्लेइंग विद द फायर, बाई चांस दैट फायर टच टू द क्रॉप्स, पूरी की पूरी क्रॉप जल जाएगी. कितना भी आप पानी डालोगे आप बचा नहीं सकते हो, क्योंकि वो बिल्कुल क्या होती है, ड्राई होती है, सूखी होती है. इमीडिएटली द होल क्रॉप विल बर्न. सो स्टूडेंट नेवर प्ले विद फायर. प्लेइंग विद मैच स्टिक, ये भी बहुत, देखो पहले क्या होता था गांव में लोगों के, आज तो धीरे धीरे टाइम चेंज हो रहा है बेटा, लोग क्या पक्के हाउसेस में रह रहे हैं. ओल्ड टाइम में मैक्सिमम लोग विलेजेस में कच्चे हाउसेस में रहते थे, और कच्चे हाउस की रूफ, आज क्या रूफ बिल्कुल पक्की बनती है. सीमेंट है, आयरन रॉड्स हैं, स्टोन्स हैं, पीबल्स हैं, इन सबको यूज करके, सैंड, ये सबको यूज करके रूफ बनती है. ओल्ड टाइम में क्या होता था, स्ट्रा को यूज करते थे, सूखी घास जो बड़ी बड़ी होती थी उससे रूफ बनाते थे. तो कई बार ऐसा होता था बच्चे आपस में खेल रहे हैं, गलती से आग उस घास के टच में आ गई, और वो तो ड्राई होता था ना, इसलिए पूरे घर में आग लग जाती थी. सो स्टूडेंट नेवर प्ले विद फायर. आज तो मैच स्टिक फिर भी बहुत कम हो गई है घर में. पहले क्या होता, बच्चे मैच स्टिक से खेलते थे. ओके, तो बाय चांस अगर वो घर में क्लॉथ है उसके टच में आ गया तो भी आग लग सकती है. सो इट इज नॉट गुड दैट यू प्ले विद द फायर. Another thing, crackers can be dangerous. Every year before the festival of Diwali, many great personality of our country, they come on the TV and they say in Diwali don't burn the crackers, or even you are burning the crackers, it is creating lot of air pollution. And even if it's a festival, you are burning
crackers, then always burn the cracker in the supervision of the elders. जब भी पटाखे जलाओ तो आपके बड़े आपके अगल बगल होने चाहिए, उनके सुपरविजन में करो, ठीक है। क्योंकि एवरी ईयर आफ्टर दिवाली फेस्टिवल आप न्यूज़पेपर उठा के देख लो, बहुत बच्चे, क्योंकि हमारे संग जब तक कोई घटना नहीं होती है तब तक हमें समझ नहीं आता, हमें लगता है लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं, बट एवरी ईयर इट हैपेंस ड्यू टू क्रैकर्स मैनी ऑफ द पीपल गिव अप देयर लाइफ, और या तो उनके हाथ जल जाते हैं, कितने बच्चों की आंख की रोशनी भी चली जाती है, अगर आप क्रैकर जला रहे हो और वो बिल्कुल आपके आइस के बगल में है तो इससे आपकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है, और होता है ऐसा। सो मैं ये कह रहा हूं कि व्हेनेवर यू आर यूजिंग दीज थिंग्स ऑलवेज टेक प्रिकॉशंस, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, ऑलवेज टेक प्रिकॉशंस व्हेन यू आर हैंडलिंग द फायर। सेकेंड पॉइंट है, वी शुड नॉट गो नियर फायर स्पेशली व्हेन वी आर वेयरिंग सिंथेटिक क्लोथ्स। देखो जो मैन मेड क्लोथ्स होते हैं वो सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं, केमिकल्स बना के बनाया जाता है। तो कॉटन क्लोथ्स में देखो बेटा क्या फायदा है, हमेशा देखो आप लोग के मम्मी लोग किचन में काम करती हैं कॉटन के कपड़े, कॉटन क्लोथ्स में क्या है कि फायर लग भी जाए तो वो इतने जल्दी नहीं जलते हैं, और उन कपड़ों को जल्दी से, मान लो किसी को आग लग गई, कॉटन क्लोथ्स है तो आप उस क्लोथ्स को फाड़ के फेंक भी सकते हो, टेयर करके हटा भी सकते हो बॉडी से। लेकिन जो सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं जस्ट लाइक आपके पॉलिथीन, पॉलिथीन एकदम चिपकने लगता है, कभी जलाया होगा, ऐसा मैं कह रहा हूँ, जलाना मत पॉलिथीन, और पॉल्यूशन क्रिएट करता है। लेकिन यही होता है सिंथेटिक क्लोथ्स में अगर बाई चांस हादसा हो जाए तो ये क्या होता है, ये बॉडी जो हमारी स्किन है ना, स्किन से बिल्कुल चिपक जाता है, आप इसको स्किन से दूरी नहीं कर सकते, इससे और ज्यादा बर्निंग हो जाती है। इसलिए हमेशा वी शुड व्हेनेवर वी आर क्लोज टू द फायर, हमें कॉटन क्लोथ्स होंगे देन वी आर सेफ। कॉटन क्लोथ्स में फायर लगती है तो ये क्लोथ्स हमारे स्किन में नहीं चिपकते, ठीक है। लेकिन जो सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं ये जब बर्न होने लगते हैं तो ये क्या होते हैं, मेल्ट करके ये हमारे स्किन में, हमारी स्किन से ही चिपक जाते हैं, ठीक है। तो जब जल रहे हैं तो ऐसे कपड़ों को हम लोग स्किन से दूर भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये आफ्टर बर्निंग ये स्टिक कर जाते हैं, हमारे स्किन से चिपक जाते हैं बिल्कुल। इसलिए इफ यू आर वेयरिंग अ सिंथेटिक क्लोथ्स जो कि मैन मेड होते हैं, केमिकल से बनाए जाते हैं, देन नेवर गो नियर द फायर प्लेस, फायर प्लेस के बगल में पास में जाने की कभी कोशिश मत करो। अगर आपने कैसे क्लोथ्स पहन रखे हैं, सिंथेटिक क्लोथ्स पहने, क्योंकि वे बहुत स्टिकी होते हैं, आपके स्किन में ही पूरे चिपक जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन द गैस स्टोव इज नॉट इन यूज वी मस्ट स्विच ऑफ द गैस रेगुलेटर। जो ये शो किया है, जो मैंने अभी आपको पहले भी दिखाया था, दिस इज द पिक्चर ऑफ ए एलपीजी सिलेंडर एंड LPG liquefied petroleum gas is inside this cylinder. So अगर your mother is cooking the food at that time regulator on है, it's very good. Whenever she is not cooking the food please off the regulator. Regulator off करने से क्या होगा, वो ब्लॉक हो जाएगा, वहां से गैस नहीं जाएगी, ठीक है, वो वहां से ब्लॉक हो जाएगा, फिर वहां से गैस जाएगी नहीं आगे, एंड देयर इज नो चांस ऑफ गैस लीकेज, गैस लीकेज का कोई चांस नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि बेटा मैंने आप लोग से बोला ना, आज हमने अपनी लाइफ बहुत कंफर्टेबल तो बना ली रखी है, बट अगर आप ध्यान से एक एक चीज के बारे में अपने पेरेंट्स से डिस्कस करोगे तो वो हर जितने भी चीजें होंगी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है या अदर थिंग्स इन द हाउसेज, देखो अक्सर आपकी मम्मी लोग, आप लोग कुछ भी चीज टच करते होगे तो बोलते, आपको हमेशा डांटते या बोलते होंगे, बिकॉज ये सारी चीजें क्या है, डेंजरस है। वी शुड हैव टू टेक प्रिकॉशंस। हम अगर वी स्टार्ट प्लेइंग विद दिस थिंग्स देन व्हाट हैपन, इवन वी हैव टू गिव अप आवर लाइफ फॉर दैट। सो when you are using this types of thing please always be use this thing very very carefully. Okay student,
Thank you.